1 कंटेनर का जो बजट है वो आप ले लीजिए कि 6.5 लाख के आसपास का एक कंटेनर पड़ेगा आपको। 20 रुपए का आपका परचेज है पर केजी का, तो जी डिपेंड सर। करेगा, परचेज अप एंड डाउन होता है, राइट। तो जी 20 सर। रुपए के केजी पे आपका अप्रोक्सीमेटली 6,500 तक का या 7 लाख तक का जो है, सॉरी, जी 6.5 लाख या 7 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पर कंटेनर का रहेगा। सर, प्रॉफिट मार्जिन? सर डिपेंड करेगा मार्केट टू मार्केट, क्या साइजेस चल रहा है, कितने कंटेनर आप भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, टोटली मार्केट डिपेंडेंसी सर। सबसे बेस्ट आप इंडियन पोस्ट के थ्रू जाइए सर। सबसे बेस्ट इंडियन पोस्ट इज द बेस्ट, जो चीपेस्ट भी रहेगा और फास्टेस्ट भी रहेगा, जिसके थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या पार्सल है, आपका क्या पैकेज है, आपका क्या पार्सल का वेट है, वो सब डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री उसके लिए। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इट्स, ये हम कहते हैं गुमास्ता धारा लाइसेंस। कहीं कहीं पे गुमास्ता धारा लगता है, म्युनिसिपालिटी टैक्स का लगता है, कहीं पे नगर पालिका लगता है। तो ये सब अलग अच्छा, अलग रहता है, एज पर सिटी टू सिटी जो है वेरी करता है सर ये। तो उसके लिए स्पेस दिखाना पड़ता है क्या? हाँ, वो अगर आपको बताना है तो वहां पे बता सकते हैं, उसके बिना तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस होता है ना सर इसके लिए। अच्छा, जी। ठीक। ओके। तो अगर ये अगर ये अप्लाई होता है तो क्या ये उसका वेरिफिकेशन भी होता है क्या वहाँ से? सी इसके अंदर सर बहुत सारी डिटेल्स मैटर करती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपके वहां पे नगर पालिका लग रहा है या ग्राम पंचायत लग रहा है या म्युनिसिपालिटी लग रहा है, उस हिसाब से डिफाइन होता है सर। ये म्युनिसिपैलिटी ही लगता है? हाँ, तो म्युनिसिपालिटी का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट आएगा सर वहां पे। अच्छा, जी। और कितने दिनों में लाइसेंस आ जाता है जनरली ऑन तो ये एवरेज? तो गवर्नमेंट का है, मैं भी नहीं बोल सकता कि आपकी म्युनिसिपालिटी कितने फास्ट काम करती है, हाउ डू आई नो सर। अच्छा, ठीक। जी 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 सर। Alibaba is one of the platform where you can import some of the products, but if you want to go ahead with the bulk deal, so it's very strange that you need all the relevant documentation and import procedures. You have to pay some of the duties for any of the product what you are importing. First thing, you have to identify the supplier. Do not trust with any of the relevant suppliers who are showcasing as a sponsored point of view on an Alibaba. So I would request you to please identify the best supplier for it. Prior to that, you need to identify what all are the duties, what all are the taxes, what all are the documentation is required to clear that import goods. For that, you need to connect with the CHA from the any of the port. You want to import some of the minimum amount, or you are going with the bulk transactions for that. Minimum. Minimum is the workable for that. That's not a problem. You can check it from Alibaba. That's fine. So it's not a Minimum huge risk. also, there are some specifications, like for some products, it's like they have a certain limit of minimum as well. For Definitely. some it is 10, for some it is 1,000. Correct. So So that's what I asked Ranjanji, because if you are going with the minimum product, you can go ahead with Alibaba. But if you are going with the bulk product, verification is required from the third party. That is what I can suggest you from my side. and how to do that? I mean, how do I get it to my address? You have to No, provide I am asking the. about the transportation. Like if I want to They import. can provide the transportation. No need to worry. They will provide the transportation. They will ship the goods. So no need to worry on that. They will mention all the relevant details. If you can go through with the Alibaba, whenever you are clicking on the product details, there is a shipping charges. This is the extra shipping charges which has been mentioned over Yes. there, right? So you need to pay all the shipping charges. They can export the goods from their side. That's not a problem. And there are some of the verification, 100% assurance, gold membership, trusted on those people only, because Alibaba has gone with the ground level challenges and identified those people, and they have verified their place and manufacturing unit or the offices. I would request you can go ahead with those people instead of connecting with the random people in Alibaba. तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो जाते हैं तो वो 1.5 से 2 महीने का आप समय मान के चलिए सर। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके कंप्लीट हैं तो आपको 1-1.5 महीना, और जिसमें आपका लिस्टिंग वगैरह जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, पैकिंग जाएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर तक निकालने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, हम आपको निकाल के देते हैं उसके लिए। और डॉक्यूमेंटेशन का कितना? अगर आप लिस्ट करते थे जिसमें आपको आने में टाइम लगता है, ऑर्डर आने में, बट यस आपको सजेस्ट भी करा जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहिए जिसमें ऑर्डर आपको फटाफट आए। ओके सर, और डॉक्यूमेंटेशन को कितना वक्त लगता है? सर ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट स्पेसिफिक है।
आपको आईसी निकालना है, आईसी तुरंत आ जाता है, बट आईसी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लाइक अगर आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है तो 1 दिन में भी ओपन हो जाएगा, 2 दिन में भी ओपन होगा, 3 दिन में भी ओपन होगा। वैसे ही अगर आपको जीएसटी निकालना है तो 7 दिन में भी आएगा, 21 दिन में भी आएगा और 1.5 महीने में भी आएगा। अगर आपको रिजेक्शन आया तो और टाइम लगेगा। तो वो गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो डिपेंड करता है। ओके।